Good afternoon, people. So we're going to continue with our lecture on physical world. Today, we're going to talk about physics, technology, and society. Now, uh, physics is an absolute world, but it is also a need-based world. Need-based as in any invention will only happen if there is a requirement, or in fact, there is a necessity. As the old adage goes, that necessity is the mother of all inventions. No inventions are actually brought through until and unless there is a requirement or there is a necessity for that invention to be done. So thermodynamics came into picture when they wanted to know about heat engines. And anyways, we all know that the industrial revolution happened because of the steam engines. We also know that wireless communication happened because we understood the basic laws of electricity and magnetism. We know that in 1933, Ernest Rutherford said that there is no way that you could tap energy from atoms. And within 5 years, Hahn and Meitner, they were able to discover the phenomena of neutron-induced fission of uranium. And once they realized that uranium fission is so powerful that it can power cities in itself, nuclear power reactors and nuclear weapons were formed. We all know that the wireless chip that was found was the reason why the computer revolution has happened in the last 3 decades. And we have also been able to find new ways to develop energy resources so that we don't have to depend on fossil fuels. We know the solar photovoltaic cells that we have invented, the wind mills, the nuclear energy. So all of these alternate sources of energy that has been developed will someday allow us not to use or not to be dependent on fossil fuels for our energy needs. Physics, here it says, is the study of nature and natural phenomena. And the physicists, they try to discover the rules that are operating the nature on the basis of their observations, their experimentations, and their analysis. So what does physics deal with? It deals with the laws and rules that govern the natural world, that govern the actual world. And we will be discussing these basic fundamental forces in detail in future. Now, they've mentioned some very famous scientists and their contributions and their country of origin. We have some Indians here like Jatendranath Chandra Bose, who found the ultra short radio waves, who's from India. And there are other few people who are from India and from other country. So you can go through this list of scientists and their inventions on your own time. If you have any questions about these people, you can certainly ask me later. So coming to the fundamental forces of nature. What do you mean by fundamental? Fundamental means basic. Fundamental means something that is not changeable. Basically, fundamental means the foundation on which physics lies. So we have an intuitive notion of force. We know that force is required to push, carry, throw objects, deform or break them. मतलब हमें शक्ति का एक बेसिक लॉजिक पता है. हमें पता है कोई भी चीज को हिलाने के लिए, उठाने के लिए, धक्का देने के लिए ताकत लगती है. और हमें ये भी पता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है. जैसे अगर अभी अचानक से कोई बॉल आके हमको लगे तो हमें पता है कि वो कैसे कितने जोर से लगेगी, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बॉल और उसकी स्पीड. या अगर हम लोग तेजी से घूम रहे हैं किसी मेरी गो राउंड में, या हम कार भी बहुत स्पीड में चला रहे हैं और चेहरा अगर बाहर निकालते हैं तो हवा का फोर्स हम अच्छी तरह से फील कर सकते हैं. उन्हें पहले के जो लोग थे, एरिस्टोटल और ये सब, उनको ये फोर्स के बारे में इतना अच्छा नॉलेज नहीं था. आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जब उसने अपने लॉज ऑफ मोशन निकाले, और उसने फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी समझाया.
तो न्यूटन ने क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई, यानी कि लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन का इफेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, उससे हमें समझ में आया कि कैसे कोई चीज जब किसी की दूसरी चीज की तरफ खींची चली जाती है तो वो फोर्स क्रिएट करती है। और हमें ये भी समझ में आया है कि जब कोई चीज मोशन में रहती है तो फिर वो भी अपने आप में एक फोर्स क्रिएट करती है, और ये जो मोशन में रहेगी ये अपने आप मोशन में नहीं जा सकती। ठीक है, मैं स्लोली स्लोली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये रीड भी करें जो आपके स्क्रीन्स पे हैं। मैं उसी को समझा रहा हूँ, बस उसको उसको बस आपको हिंदी में समझा रहा हूँ या इजीली समझा रहा हूँ, मेरे को उसको रीड करके आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बट बेसिकली जो उसमें लिखा है आपकी स्क्रीन पे मैं वही आपको समझा रहा हूँ। तो न्यूटन ने जब अपने तीनों लॉ ऑफ मोशन निकाले तो उससे हमें समझ में आया कि कोई भी चीज अगर मोशन में नहीं है तो वो अपने आप मोशन में नहीं जाएगी जब तक फोर्स नहीं अप्लाई होगा। अगर कोई चीज मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई रीजन नहीं हो उसके मोशन से बाहर निकलने का, यानी किसी फोर्स से उसको रोका ना जाए। और अगर कोई चीज के ऊपर फोर्स पड़ता है तो वो उसका उतना ही इक्वल रिएक्शन आता है उसके फोर्स पे। तो ये सारे लॉज से हमें समझ में आया कि कोई चीज मोशन में क्यों होती है। और भी कई सारे फोर्सेस हम लोग फील करते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स जब हम अपने दम से कोई चीज करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बॉडीज, अगर हम किसी से कोई दो बॉल को एक दूसरे पे जोर से फेंकेंगे तो जैसे ही वो टकराएगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा। फ्रिक्शन जो कि एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। टेंशन और एलोंगेशन, जैसे कि अगर हम लोग ने रबर बैंड जोर से खींचा तो फिर वो वापस एक जगह पे आएगा। बॉयंसी एंड विस्कस फोर्स, जहाँ पे सॉलिड्स जो फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर फ्लूइड के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जैसे अगर आप पत्थर पानी में डालोगे तो उतना पानी बाहर हट निकल जाएगा। अगर आप एक ग्लास पानी फुल ऊपर तक भरो और उसमें एक छोटा सा पत्थर डालो तो पानी बाहर गिरेगा ही गिरेगा। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, अगर पानी स्विमिंग पूल के ऊपर आप सीधा सीधा गिर जाओ पेट के बल तो आपको पेट पे बहुत जोर से लगेगा जबकि वो पानी है। बट आप टेढ़ा गिरोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि आप अगर सीधा गिरते हो तो पानी के बहुत सारे सरफेस एरिया पे आपकी बॉडी पड़ती है और सरफेस एरिया ऑफ वाटर आपकी बॉडी को पुश करता है। और क्योंकि आप स्ट्रेटली गिर रहे हो तो आप पानी के अंदर डाइव करने के बजाय स्ट्रेट गिरते हो तो आपकी बॉडी को वो फील होता है। अगर कभी किसी ने स्विमिंग पूल में ट्राई किया होगा तो उसे पता होगा बहुत दुखता है। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज मत करिएगा, सही में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर आप छाती के बल सीधा गिरेंगे तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि पानी का जो सरफेस टेंशन है वो आपकी बॉडी के ऊपर सीधा इम्पैक्ट करता है। और भी कई सारे फोर्सेस हैं, चार्ज बॉडीज, मैग्नेटिक बॉडीज, मैंने आप लोग को समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी का इफेक्ट होता है। अगर आप एक मैग्नेट लें उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करें तो वो एक पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा। उसके अंदर आप कोई भी उस मैग्नेट के पास आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अगर डालेंगे तो वो खराब हो जाएगी। ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि जो दिखता है बड़े लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम अगेन हमारे पास इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इंटर एटॉमिक, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी। आप लोग को ऑलरेडी इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पता है। आपने कार्बन एनर्जी कंपाउंड्स की पढ़ाई की, आपको मालूम है कि दो एटम्स एक दूसरे दो चार्ज प्रोटॉन्स रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक लूप में घूमते हैं। ये सारी चीजें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है और अनलिमिटेड है। 20th सेंचुरी के फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और जो नोटिस आई है वो ये है कि different forces occur in different contexts actually arise from a small number of fundamental forces in nature, which means that जो अलग अलग forces हम देखते हैं, जो अलग अलग चीजों से आती भी हैं, वो actually उनका जो basic logic है वो काफी limited है, वो काफी कम नंबर के forces से आता है। बस उसके principles अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि actually वो उतना required है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स जो अराइज होता है
वो इसी लॉजिक से होता है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि एटम्स के बीच में काम करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो डिराइव फोर्सेस के लॉ हैं, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फंडामेंटल फोर्सेस के बीच में है। तो अभी अपने अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आपको ये समझना है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में। अच्छा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया है, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये या आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ लिखा है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो 4 फंडामेंटल फोर्स में से सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग इसको रीड करेंगे। The gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. It is a universal force. Every object experiences this force due to every other object in the universe. All objects on the earth, for example, experience the force of gravity due to the earth. In particular, gravity governs the motion of the moon and artificial satellites around the earth, motion of the earth and planets around the sun, and of course the motion of bodies falling to the earth. It plays a key role in the large-scale phenomena of the universe, such as formation and evolution of stars, galaxies, and galactic clusters. तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही फंडामेंटल फोर्स है, और ये बेसिकली एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है डिपेंडिंग ऑन देयर मासेस। पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो सब इस फोर्स को फॉलो करती हैं। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूमते हैं, प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उनके सैटेलाइट्स उनके चारों तरफ घूमते हैं, प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उनका पानी, मिनरल, गैस जो भी उनके एटमॉस्फेयर के अंदर है वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल जाती, और ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर चल सकते हैं, और अगर कोई चीज एटमॉस्फेयर में एंटर करे तो वो अर्थ पे ही गिरती है। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और यूनिवर्स कैसे फॉर्म हो रहा है, गैलेक्सीज कैसे फॉर्म होती हैं, गैलेक्सीज कैसे फैलती हैं, ये सारे भी चीजें जो हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। In the simpler case, when charges are at rest, the force is given by Coulomb's law. Attractive for unlike charges and repulsive for like charges. Charges in motion produce magnetic effects, and a magnetic field gives rise to force on a moving charge. Electric and magnetic effects are in general inseparable. Hence the name electromagnetic force. Like the gravitational force, electromagnetic force acts over large distances and does not need any intervening medium. It is enormously strong compared to gravity. The electric force between two protons, for example, is 10 raised to 36 times the gravitational force between them for any fixed distance. तो ग्रेविटी जो है वो तो आप लोगों को पता है, वो दो ऑब्जेक्ट्स जिनके मास के ऊपर डिपेंडेंट उसका ग्रेविटी है G2 G1 अपॉन R1 R2। आप लोगों को आपने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होती है उससे कंपेयर टू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी जो मतलब उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास इलेक्ट्रिकल बैकअप है, और ये जो चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये प्रोटॉन्स का भी जो चार्ज है उसी तरह होता है। अगर दो प्रोटॉन्स के बीच के इलेक्ट्रिक फोर्स को आप ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करोगे तो वो 10 raised to 36 टाइम्स, यानी 1 followed by 36 zeros, उतना ज्यादा गुना, उतना प्लस नहीं, उतना ज्यादा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को, उतना फर्क पड़ेगा उसको, चाहे वो कोई भी डिस्टेंस हो। मैटर जो हमें पता है वो एलिमेंट्री चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स का होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये सारे के सारे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल्स पे डोमिनेट करती है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वही गवर्न करती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को, केमिकल रिएक्शंस को, मैकेनिकल, थर्मल और बाकी प्रॉपर्टीज को। और ये माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस जैसे कि टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब के नीचे यही बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहती है।
यानी कि कई सारे जो हम बाहर फोर्सेस देख रहे हैं, जैसे कि टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, स्प्रिंग, ये सबके बेसिक, इन सबके पीछे जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का है। क्योंकि कोई भी चीज जो है वो मैटर है, कोई भी मैटर है वो मॉलिक्यूल्स से बना है, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर एटम्स हैं, कोई भी एटम्स है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, कोई भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जहां भी हैं वो अपने ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रिंसिपल्स के वजह से काम कर रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या गेन करते हैं, ये सबका सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से जब वो मैटर कोई भी एक्चुअल फोर्स पे एक्ट करता है तो उसका रियल रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। Gravity is always attractive, while electromagnetic force can be attractive or repulsive. Another way of putting it is that mass comes only in one variety. There is no negative mass, but charge comes in two varieties, positive and negative charge. This is what makes all the difference. ये बहुत बड़ा पॉइंट है गाइस। आई नो अभी तुम लोग को इसका डेप्थ नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अगर तुम लोग ये चीज समझ जाओगे तो लाइफ टाइम के लिए साइंस इजी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि ग्रेविटी हमेशा एक दूसरे की तरफ खिंचाव करती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स खिंचाव भी कर सकती है और दूर भी कर सकती है। मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव माइनस मास नहीं होता। जैसे अभी तुम्हारे हाथ में पत्थर है तो पत्थर पत्थर ही होगा, बिना पत्थर पत्थर ऐसा करके कुछ नहीं होता, बराबर। ऐसा तुम उसको नेगेटिव में नहीं ले सकते हो। लेकिन चार्ज हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका नेट चार्ज जीरो होता है। जब तक नेट चार्ज जीरो नहीं होगा मैटर स्टेबल नहीं होगा। आप लोगों को सबको पता है, हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, जितना भी टोटल मास प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन्स का होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का भी टोटल मास होगा ही। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स का उतना टोटल मास नहीं होगा मैटर स्टेबल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अंदर जीरो होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो टेरेस्ट्रियल फिनोमेना पे दिखती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में दिखती है, जहां पे एटम्स आयनाइज्ड हो जाते हैं और लाइटनिंग क्रिएट करते हैं। पिछले वाले पेज पे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में था, यहाँ पे सत्येंद्रनाथ बोस के ऊपर है। अब इसको पॉज करके इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। If we reflect a little, the enormous strength of the electromagnetic force compared to gravity is evident in our daily life. When we hold a book in our hand, we are balancing the gravitational force on the book due to the huge mass of the earth by the normal force provided by our hand. The latter is nothing but the net electromagnetic force between the charged constituents of our hand and the book at the surface in contact. If electromagnetic force were not intrinsically so much stronger than gravity, the hand of the strongest man would crumble under the weight of a feather. Indeed, to be consistent in that circumstance, we ourselves would crumble under our own weight. अगर हम सोचें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे उसका स्ट्रेंथ जो है वो हमारे लाइफ में हमें कंटिन्यूअसली दिखता है। अगर हम बुक को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो बुक के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है वो हमारे हाथ के नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो जा रहा है। एक्चुअली हमारे हाथ का फोर्स कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सामने, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है ग्रेविटी से कि हमारा हाथ जो है वो बराबर उस बुक को उठा सकता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होता तो हमारे हाथ में फेदर भी होता तो भी हमारा हाथ टूट जाता। इनफैक्ट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता जिसके वजह से हमारे हमारे सेल्स में आपस में कंटिन्यूसली पुल ये नहीं होता, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नहीं होता रहता, तो हम खुद अपने वेट के दम से दब जाते, अपने ही वेट में खत्म हो जाते। ठीक है, नाउ कमिंग टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी तक हमने कौन सा किया? हमने किया ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके बाद हमने किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब थर्ड वाला कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस. It is evident that without some attractive force, a nucleus will be unstable due to the electric repulsion between its protons. This attractive force cannot be gravitational since force of gravity is negligible compared to the electric force. A new basic force therefore must be invoked. The strong fundamental force is the strongest, or the strong nuclear force is the strongest of all fundamental forces, about 100 times the electromagnetic force in strength. It is a charge independent and acts equally between a proton, a neutron and a neutron, and a proton and a neutron. Its range is, however, extremely small, of about nuclear dimensions 10 raised to minus 15 meters.
It is responsible for the stability of nuclei. The electron, it must be noted, does not experience this force. Recent developments have, however, indicated that protons and neutrons are built out of still more elementary constituents called quarks. तो strong nuclear force क्या होता है? Strong nuclear force एक force है जो protons और neutrons को nucleus के अंदर रखता है. हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों साथ में आराम से रहते हैं, जबकि उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक रिपल्शन है, वो कंटिन्यूसली एक दूसरे को रिपल करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज्यादा है. बट न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है, उससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से वो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रख पाती है. बस न्यूक्लियर फोर्स का रेंज बहुत कम है. ये न्यूक्लियर डायमेंशंस में 10⁻15 मीटर, यानी 1/1 फॉलोड बाय 15 zeros मीटर, उतना छोटा जगह पे ही ये काम करती है. और अभी मालूम पड़ा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्वार्क्स करके एक जो और एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उससे बनते हैं. तो न्यूक्लियर फोर्स हमारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. Now coming to weak nuclear force. The weak nuclear force appears only in certain nuclear processes, such as the beta decay of a nucleus. In beta decay, the nucleus emits an electron and an uncharged particle called neutrino. The weak nuclear force is not as weak as the gravitational force, but much weaker than the strong nuclear and electromagnetic force. The range of weak nuclear force is exceedingly small, of the order 10⁻16 मीटर. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कोई न्यूक्लियर प्रोसेसेस में होता है, जैसे कि बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस. बीटा डिके मतलब जब एक न्यूक्लियस मरता है तो उसका जो बीटा डिके होता है उसमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और एक अनचार्ज पार्टिकल एमिट करता है जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं. ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक नहीं होता, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत वीक होता है, और इसका रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी कम होता है, 10⁻16 मीटर. हमने पहले भी कहा है कि यूनिफिकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेस्ट है फिजिक्स में, और कंटिन्यूसली लोग कोशिश करते हैं कि सारे फोर्सेस को यूनिफाई कर सकें. यहाँ पे एक टेबल है जो सारे के सारे फंडामेंटल फोर्सेस बता रहा है. इस टेबल को पॉज करके आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा. Newton unified terrestrial and celestial domains under a common law of gravitation. The experimental discoveries of Ørsted and Faraday showed that electric and magnetic phenomena are in general inseparable. Maxwell unified electromagnetism and optics with the discovery that light is an electromagnetic wave. Einstein attempted to unify gravity and electromagnetism but could not succeed in this venture. But this did not deter physicists from zealously pursuing the goal of unification of forces. Recent decades have seen much progress on this front. The electromagnetic and the weak nuclear force have now been unified, and we have seen aspects of a single electroweak force. What this unification actually means cannot be explained. Attempts have been made to unify the electroweak and the strong force, and even to unify the gravitational force with the rest of the fundamental forces. They are still speculative, and some of the milestones are mentioned in the table below. तो कई लोगों ने कोशिश किया है इसको यूनिफाई करने को, अभी तक सब कुछ पूरा नहीं हुआ है. कुछ चीजों को प्रूफ किया गया है, कुछ चीजों को अभी भी प्रूफ कर रहे हैं. क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो इस टेबल में अच्छी तरह मेंशन्ड है. ये भी आप स्टडी कर सकते हो. आज के लिए इतना काफी है. बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें मैंने आज कवर की हैं. इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो. थैंक यू पीपल.